A very warm good morning to everyone. Welcome again here in this video tutorial. Today we'll continue with the chapter number 7, that is fractions, and we'll do exercise 70, some of the questions in book and some of the questions in our worksheet. Okay? In the last tutorial class, we have already learned about kinds of fractions. There are three kinds of fractions: like fractions, unlike fractions, and equivalent fractions. So, one more time, we'll revise it. First of all, we'll know about like fractions. Like fractions are fractions those having the same denominator, like 1 upon 2, 4 upon 2, 3 out of 2, 11 out of 2. Those fractions having the same denominators. Do you know that this is denominator, this is numerator? So those fractions having the same denominator, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है गिवन फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शंस के ग्रुप्स में, these are known as the like fractions. And unlike fractions, what about the unlike fractions? Unlike fractions are fractions those are having the different denominators. Okay, like 3 upon 5, 7 out of 5, 7 out of 9, 2 out of 11, 11 out of 13. So fractions those are having the different denominators. These are denominators and these are numerators. Fine everyone? So it is very easy to find out the like fractions and unlike fractions. Just remind one thing, if the denominators are same, these are like fractions. Like means same. हम बोलते हैं ना ये उसके like ऐसा है, उसी के जैसा है, मीन्स सेम है, सिमिलर है. ओके, तो लाइक फ्रैक्शंस मीन्स इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. अनलाइक मीन्स जो डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. ओके, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. फाइन एवरीवन? सो कम टू द पॉइंट नंबर 3, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. So first of all we'll rub it. Okay, point number 3 is equivalent fractions. So I have drawn two figure here, both are squares. Okay, both are squares. So let's find out the equivalent fractions with the help of these squares. Suppose we have two squares here and divided into, first one is divided into 4 equal parts. It means we will write 4 as denominator, and second one is divided into 2 equal parts. It means 2 as denominator. Now I am shading only two portions, 2 equal parts. 2 पार्ट को मैंने शेड कर दिया. आउट ऑफ 4 कितने पार्ट शेडेड है इसमें? Yes, only 2. And here I have shaded only one part. So out of 2, how many parts are shaded here? 1. So both 1 and 2, figure number 1 and 2, both are equivalent fractions. Why both are equivalent fractions? Because हम equivalent fractions में हमारे जितने भी fractions हमें मिलते हैं, जो उनका शेडेड पोर्शन होता है वो एग्जैक्टली हाफ ही होता है. आप बोलोगे कि कैसे? अब जैसे ये हाफ है, 1 का आधा किया है हमने. 1 था हमारे पास, उसको हमने हाफ ऑफ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो 2 का हाफ कितना होता है? 1 होता है. सो वी हैव शेडेड ओनली 1 पोर्शन. लाइक यहाँ पर हमारे पास इक्वल कितने हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था? 4. और 4 का हाफ कितना होता है? मीन्स किन टू नंबर्स को मिलाकर 4 बनता है. हमारे पास सपोज टू बी 4 बीट्स हैं यहाँ पर. फाइन, अब हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में करना है. मीन्स हमको
सेपरेट करना है बीट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में। सपोज 4 बीट्स हैं, 4 बीट्स में से हमको 2 बच्चों को इक्वल बीट्स देने हैं, तो हम कितने कितने देंगे? यस, 2 हम एक बच्चे को दे देंगे और 2 हम एक बच्चे को दे देंगे। लाइक दिस हमारे पास 2 बीट्स हैं और हमने 2 बच्चों में डिवाइड करना है, तो हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, 1 हम एक को दे देंगे, 1 हम एक को दे देंगे। इट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो अ हाफ पोर्शन। इसमें भी हमने हाफ पोर्शन शेड किया है, इसमें भी हमने हाफ पोर्शन शेड किया है। सो दिस इज़ इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। 1/2, 1 आउट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 आउट ऑफ 4, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। फाइन, अंडरस्टूड एवरीवन? और कैसे भी इक्वल है मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल क्लास में एक्सप्लेन किया था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेम नंबर से, मीन्स काउंटिंग नंबर्स जो हमारे होते हैं 1 से जब हम स्टार्ट करते हैं, 1 से जो हम करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा। इफ़ विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद 1, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 1s are 1, 2 1s are 2, तो हमें सेम ही मिलेगा। हमें इक्विवेलेंट डिफरेंट निकालने हैं ना, डिफरेंट फाइंड आउट करने हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 3 4 5 सो ऑन, कितने भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशंस एंड फैक्टर्स में हमने किया था कि हम जब किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशंस यूज़ करते हैं, किसी भी नंबर के हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर के। तो मल्टीपल्स मीन्स हम उसे काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पर्टिकुलर नंबर को, दिए गए नंबर को, तो हमें ईजिली मल्टीपल्स फाइंड आउट होते हैं। वैसे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में भी हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे 2 से। तो ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। हम सेम डिजिट हम बोथ दी साइड हम लोग यूज़ करेंगे। न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 2। सो the equivalent fractions 2 1s are 2, 2 2s are 4. Look at here, 1, क्योंकि हमने सेम किया है, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए 1 आउट ऑफ 2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 2 आउट ऑफ 4 है। इफ वी मल्टीप्लाई दिस वन विथ 3, सो we'll get 3 1s are 3, 3 2s are 6. Understood? This is also equivalent fractions of 1 out of 2. In figure form, if I'll draw it here, अगर मैं इसे ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर 3 out of 6. Look at here, this is figure and total 1 2 3 4 5 6 divided into 6 equal part and I have shaded 3. मैंने इसके 3 पार्ट शेड कर दिए हैं, सो इट इज़ 3 आउट ऑफ 6। एग्जैक्टली ये भी इसका हाफ पोर्शन शेड है। 1 आउट ऑफ 2 में हाफ पोर्शन शेड किया है, 2 आउट ऑफ 4 में भी हाफ पोर्शन शेड हुआ है, 3 आउट ऑफ 6 में भी हाफ पोर्शन शेड हुआ है। इफ़ आई ड्रॉ अनदर फिगर हियर, दैट इज़ 4 आउट ऑफ 2 4s are 8, तो मैंने इसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया एंड 4 पार्ट मैंने शेड कर दिए इसके, ठीक है, 4 पार्ट्स आर शेडेड, तो इसका भी एग्जैक्टली हाफ पोर्शन शेड हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए 1 आउट ऑफ 2 में भी हाफ पोर्शन शेड हुआ है, 2 आउट ऑफ 4 में भी हाफ, 3 आउट ऑफ 6 में भी हाफ पोर्शन शेड हुआ है एंड 4 आउट ऑफ 8 में भी आपका हाफ पोर्शन शेड हुआ है। इट मीन्स आपको यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को देख के फ्रैक्शंस तो डिफरेंट लग रहा है, बट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन सब का आंसर आपका 1 आउट ऑफ 2 ही आएगा। वाई? बिकॉज 1 आउट ऑफ 2 को हमने काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ये फिगर, ये फ्रैक्शंस फाइंड आउट किए हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 आउट ऑफ 4. 1 multiplied by 3 and 2 multiplied by 3 is equal to 3 out of 6.
1 multiplied by 4 and 2 multiplied by 4 is equal to 4 out of 8. So सबके half portion only shaded है. Fine everyone. This is equivalent fractions. Means equivalent fractions find out करने के लिए हमें counting numbers 2 से हमको same numbers not only 2 कोई भी किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ दोनों को आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने के लिए. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज हियर. एक्सरसाइज 7D. दिस इज एक्सरसाइज 7D. लुक एट हियर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. शेड द फॉलोइंग टू शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. Students, this question I have already given you in the last tutorial class, but some of the students having problem to solving this exercise, so I am explaining it again. मैं इसे फिर से explain कर रही हूँ क्योंकि कुछ students को problem हुई थी इसे solve करने में. जिसने ये solve कर ली है exercise, it's okay, you can check it again. आप इसे दोबारा check करेंगे. और जिसने solve नहीं किया है, जिसे problem हो रही थी, वो इसे अभी दोबारा वीडियो ट्यूटोरियल में आकर सॉल्व करेंगे. ध्यान से वीडियो देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे. सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. शेड द फॉलोइंग टू शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. यू हैव टू शेड ओनली द फ्रैक्शंस, गिवन फ्रैक्शंस. नो नीड टू वरी अबाउट इट. आपका फिगर ड्रॉ है, आपका फ्रैक्शन लिखा हुआ है. यू हैव टू शेड ओनली एंड यू कैन यूज कलर पेंसिल्स ऑल्सो. If you have color pencils, you can use color pencils to shade the figure. आपको बुक में ही शेड करना है, आप कलर पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हो. उससे आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी जल्दी आ जाएगा. सो फिगर नंबर 1 आपका ए पोर्शन है. ए पोर्शन में आपका पहला दिया है 2 आउट ऑफ 4. इन दोनों फिगर में से आपको 4 टोटल 4 किस में दिख रहे हैं? Yes, this one. 1, 2, 3, 4. So this is 2 out of 4 and this is 1, 2. Total denominator 2 है and 1 उसका पार्ट है. तो आपको फ्रैक्शंस में शेड करना है. मीन्स 4 तो आपका टोटल है, तो आपको इसमें से 2 पार्ट में ओनली शेड करना है. आप कोई से भी 2 पार्ट ले सकते हो. ओके, ये आपका शेड हो गया. नाउ नेक्स्ट वन इज शेड ओनली 1 पार्ट. तो किसी भी पार्ट को आप ले लो और शेड कर लो लाइक दिस. एंड नेक्स्ट इज पार्ट बी 5 आउट ऑफ 8. सो टोटल सर्कल को आपने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. दिस वन आपने टोटल सर्कल को 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. ये 5 आउट ऑफ 8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. क्यों? क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है. देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के पास दोनों सेम ही डिजिट होना चाहिए. यहाँ पर आपने 2 से किया तो यहाँ आप 6 से नहीं करेंगे. सो हियर वी हैव 5 2s are 10, 8 2s are 16. सो इसमें से हम ओनली 5 पार्ट को शेड करेंगे. 1 2 3 4 एंड 5. एंड हियर सर्कल को 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो हम 10 पार्ट को शेड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो लुक एट हियर, इक्वल पार्ट ही शेड हुए हैं. इसमें भी आपका 5 आउट ऑफ 8 पार्ट शेड हुआ है. इसमें भी आपका अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो उतना ही पार्ट शेड हुआ है. फाइन. सो लाइक दिस. अब ये तो आपको दोनों समझ में आ जाएगा ना, सी एंड डी. अब इसमें समझा दिया आपको, तो सी एंड डी यू विल डू योर ओन. आप ये खुद करने की प्रैक्टिस करेंगे. इट्स वेरी ईजी. आपको ओनली 1 पार्ट शेड करना है. यहाँ पर ओनली 2 पार्ट शेड करना है. यहाँ पर भी 1 पार्ट शेड करना है. यहाँ पर ओनली 2 पार्ट शेड करना है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. स्टडी द शेडेड रीजन्स एंड फिल इन द बॉक्सेस. आपको देखना है, ध्यान से समझना है और उसके बाद बॉक्स को फिल करना है. वेरी इजी स्टूडेंट्स. अगर आपको फिल इन द बॉक्सेस को आपको सॉल्व करना होता तो आपको टफ लगता,
आपको ओनली शेडेड पोर्शंस काउंट करने हैं। यहाँ पर आपका 1 पोर्शन शेड है तो, और टोटल जो स्क्वायर है उसके कितने पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 4 आउट ऑफ 1 पार्ट शेड है तो हमने 1 आउट ऑफ 4 लिखा। यहाँ पर टोटल रेक्टेंगल के कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो वी हैव 8 हियर। नाउ हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, 1 2, ओनली 2 पार्ट आर शेडेड, so these both are equivalent fractions. 2 ones are 2, 2 twos are 4 twos are 8. Okay, 2 ones are 2 and 2 fours are 8. Here also we have 8 equal parts and 4 parts are shaded out of 8, and we have 2 equal part. Out of this, 1 part is shaded. Here 1, how many parts, 5, so here 4 3s are 12, we'll multiply it also, 5 3s are 15, it means टोटल सर्कल के जो आपके पार्ट डिवाइड किए हैं कितने हैं, 15 हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, now here out of 4 only 3 parts are shaded, and here 4, here we have 8, so 4 की टेबल में 8 कौन से नंबर पे आता है, 2, 4 2s are 8, so we'll also multiply it here, 3 2s are 6, so out of 8 6 parts are equal parts are shaded. Understood? Well students, come to our next question, question number 3. It's very easy. Find 5 equivalent fractions of the following. What we have to do, equivalent fractions के लिए हम क्या करेंगे, question number 3 and part A. We have 3 out of 7. So we have to find out equivalent fractions. First of all, we'll multiply it by 2. Both numerator and denominator will get 3 2s are 6, 7 2s are 14. Now again we'll multiply it by 3. Both numerator and denominator, 3 3s are 9, 7 3s are 21. Now 2 fractions हमें मिल गए यहाँ पर, equivalent fractions हैं ये. Again 3 out of 7 multiplied by 4. So 4 3s are 12, 7 4s are 28. Again only 3 equivalent fractions we have get here. 3 multiplied by 5, 7 multiplied by 5. So 3 5s are 15, 7 5s are 35. Now we have 1 2 3 4. One more is left. 3 multiplied by 6, 7 multiplied by 6 is equal to 3 6s are 18, 6 4s are 6 7s are 42. So here we have 5 equivalent fractions of 3 out of 7. 3 out of 7 के हमें equivalent fractions कौन कौन से मिले, 6 out of 14, 9 out of 21, 12 out of 28, 15 out of 35 and 18 out of 42. These all are the equivalent fractions of 3 out of 7. I have written this in straight way. मैंने इसे वर्टिकल फॉर्म में लिखा है, आप इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखेंगे. ओके, जब आप इसे नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो जब आप इसके 3 आउट ऑफ 7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करोगे, बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस हियर, मेरे पास हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर स्पेस नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट एज वर्टिकल फॉर्म. मैंने इसे नीचे को सॉल्व किया है
बट डजेंट मैटर कि हम इसे नीचे को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं या फिर से हमें हॉरिजॉन्टल वे में सॉल्व कर रहे हैं. बस आपको व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड हाउ वी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये समझ में आना चाहिए. अंडरस्टूड एवरीवन? In this method we can easily find out the equivalent fractions of the particular number or fractions. And one more thing, मैंने यहाँ पर sequence wise counting number के साथ ही multiply किया है. You can multiply any number. आप किसी भी number के साथ multiply करके equivalent fractions find out कर सकते हैं, but आपको उस नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है. वेदर द नंबर इज़ 50, 28, 100, 99, 1000, कोई सा भी हो सकता है. अगर आप 100 से कर रहे हैं तो 100 3s are 100 7s are. अगर आप 11 से कर रहे हैं then 11 3s are 11 7s are. You can get easily the equivalent fractions. Okay. Now next is question number B, 4 out of 5, 5 out of 6. Some of the questions we have done in our worksheet and some I have given as homework. So you will solve this question in your maths notebook. I have also given this exercise in previous tutorial class. मैंने अभी आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले. अगर आप में से कुछ बच्चों ने इसे सॉल्व किया है, no need to solve it again. Just check your answer, verify your answers, and if you have any problem then you can ask again. अगर फिर से आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं दोबारा. और जिसने नहीं किया है वो बच्चा इसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे मैथ्स के, और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उन्हें खुद से प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करने की. ओके. Now come to our next question. This is question number 4. Fill in the boxes by the correct number to make each sentence true. Okay. So here we have number A, 3 out of 8 is equal to. This is question number 4, part A. 3 out of 8 is equal to dash. We have to find out the box here, blank here, and here we have 40. Now students, observe the question. आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और ऑब्जर्व करना है. Here we have 3 out of 8. Let's solve it here. 3 out of 8 is equal to. Now tell me, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर क्या है? This is denominator, this is numerator. We have to find out the numerator. Numerator मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है. डिनोमिनेटर आपका क्या है? 40 है. Okay. Here the denominator is 8. Here the denominator is 40. And here the numerator is 3. And here we have to find out. So tell me students, D आपका यहाँ पर 8 है और यहाँ पर D आपका 40 है. Which one is greater? Yes. 8 एंड 40 में से कौन सा बड़ा नंबर है? इतना तो सबको आता है. यस, दिस वन इज ग्रेटर. 40 आपका बड़ा नंबर है. सो जब भी हमारा जो बड़ा नंबर होता है हम उसकी टेबल स्टार्ट नहीं करते हैं रीड करना, हम छोटे नंबर की टेबल रीड करना स्टार्ट करते हैं. ओके. तो हमारा जो 40 है वो 8 की टेबल में आता है. जस्ट रिसाइट द टेबल ऑफ 8. That's why I have told you earlier that you have to learn the tables also. आपको टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है. 2 to 10 तो आपको आना ही है. अगर टेबल ही नहीं आएगा, टेबल्स ही नहीं आएंगे आपको, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपको नहीं पता कि 8 की टेबल में 40 आता है तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते. आपको टेबल बुक ओपन करना पड़ेगा, आपको एडिशन फॉर्म में इसे सॉल्व करना पड़ेगा, एंड दिस विल टेक टू मच टाइम. और उसके लिए भी आपको एडिशन फॉर्म में भी सॉल्व करने के लिए वो आना चाहिए. सो जस्ट लर्न दी टेबल. आई नो 40 टेबल 8 की टेबल में आता है. तो आप बताइए कौन से नंबर पे? यस, व्हेन वी मल्टीप्लाइड 8 by 5 we'll get 40. 8 multiplied by 5 is equal to 40. So this is equivalent fractions. मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम डिनोमिनेटर को
नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी, तो हम न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 3s are, we'll write here 15. So our answer is 3 out of 8. No need to write it here. Here easily we'll write. 8 5s are 40 and 3 5s are 15. Understood? सबको समझ में आया? Now come to the next part. This is part C, and here we have 45 out of 72, and here 5, and here is simple blank box. So we have to find out that blank box. Now students, it is little bit tricky. यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई भी यूज़ करना पड़ता है एंड डिवीज़न भी यूज़ करना पड़ता है. सो हियर 5 की टेबल में आपका 45 आता है. मैंने जैसे आपको ऊपर वाले में बताया था, दिस इज़ न्यूमरेटर एंड दिस इज़ डिनोमिनेटर. यहाँ पर हम 72 की टेबल तो पढ़ेंगे नहीं और 45 की टेबल तो पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज 45 एंड 5 में से ग्रेटर कौन सा है, क्योंकि हमारा इसमें न्यूमरेटर सॉल्व किया है, डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं किया है. सो हम न्यूमरेटर चेक करेंगे ओनली. ठीक है. अब आप मुझे बताइए 45 एंड 5 में से कौन सा बड़ा है? 45. सो विल जस्ट रीड द टेबल ऑफ 5. 5 की टेबल रीड कीजिए. 5 9s are 45. So here we just divide 45 divided by 5. हम 45 को 5 से डिवाइड करेंगे. सॉरी 45 को 5 से डिवाइड नहीं करेंगे. 5 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है 45? 5 9s are 5 9 टाइम्स. 5 की टेबल में 9 टाइम्स आता है. ठीक है. तो हम 5 9s are हम करेंगे. तो हम 9 से 45 को डिवाइड करेंगे. ठीक है. अब हमने 9 से 45 को डिवाइड किया, तो सेम 72 को भी हम 9 से ही डिवाइड करेंगे. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आप मल्टीप्लाई भी सेम नंबर से करेंगे और डिवाइड भी सेम नंबर से करेंगे. सो विल गेट हियर 9 5s are 45 and 9 8s are 72. So here we get 8. Fine. 9 5s are 45 and 9 8s are 72. Understood everyone? Now observe these questions. इस टाइप के क्वेश्चंस आप ऑब्जर्व करोगे और जब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा, जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, टेबल लर्न कीजिए. ईजीली यू कैन डू एंड यू कैन सॉल्व दीज सम्स. ओके. नाउ question number B. I suppose I have done in this question in worksheet. Rest of the questions you will solve in your worksheet as I have given you for practice. ये मैंने आपको पहले भी दिया था. मे बी बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही हो. जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व करेंगे और जिन्होंने सॉल्व कर दिया था वो दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. एंड जिसका ठीक है वो अपना आंसर ओनली वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे और एंड रफ नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. फाइन एवरीवन? ओके. सी इन द नेक्स्ट मैथ्स ट्यूटोरियल क्लास. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.